Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video I will try to cover first chapter rational and irrational numbers of Maharashtra State Board 8th Mathematics, 8th Standard Mathematics. So natural numbers, whole numbers, with this chapter we will start. If you see the first page of your chapter rational and irrational number, you will find that natural numbers, whole numbers, integers are given. So already you know the natural numbers are counting numbers are called natural numbers. Like it begins with whatever you count, you begin with 1, like, and so on. Whole numbers are natural numbers along with 0 are called whole numbers, and whole numbers begins with 0. But remember that all the natural numbers are whole numbers. सारे natural numbers whole number हो सकते हैं, but all the whole numbers are not natural numbers, because 0 is not a natural number. Remember this point. And in objective type of question it may also ask which is the smallest whole number, 0, which is the smallest natural number 1, like this. Now integers, the collection of all the positive, negative numbers along with 0 are called integers. Look at this number line. 0 is a middle, right hand side पे whenever you draw the number line, 0 will be the middle, right hand side पे positive numbers आएंगे, left hand side पे negative numbers आएंगे. So positive and negative numbers along with 0 is called the natural number, integers. Sorry, or you can say the collection of all the whole numbers along with 0 are called integers, right? Now before going to rational numbers, we first understand what are the fractional numbers. Fractional numbers are in the form of P upon Q is called fractional numbers, where P and Q are natural numbers. For example, 1 upon 4, 3 upon 4, 1 upon 3. Here is a fraction. 1 upon 4, 1 is a numerator, 4 is a denominator. Both are natural numbers, counting numbers है दोनों भी. 3 is a numerator, 4 is a denominator. 3 upon 4 is a natural number. 3 is a natural number, 4 is a natural number. It is the ratio in the form of P upon Q. Any fraction, just say fractional numbers means any fraction. 1 upon 4, 3 upon 4, 1 upon 3, these are the fraction. So these are called fractional numbers. Now come to the rational numbers. Rational numbers are in the form of P upon Q is called the rational numbers. Any fraction, rational numbers किन्हें कहते हैं? कोई भी fraction हो या कोई भी number हो, अगर वो P upon Q के फॉर्म में हो तो उसको rational number बोलेगी. Like अगर मैं लिख दूँ सिर्फ only if I write 15, तो there is a denominator. Every number you must keep in mind that कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर मेंशन नहीं है तो 1 रहता है डिनोमिनेटर. लाइक इफ योर रोल नंबर इज 14, 10, like the denominator will be 1. Every number has a denominator 1. But keep in mind that where P and Q are integers and Q must not be a 0. Q is not is equal to 0. अगर Q 0 रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो 18 अपॉन 0, तो वो नॉट डिफाइन है, वो रैशनल नंबर नहीं है. अब यहाँ पे देखिए 18 अपॉन 18, 18 अपॉन 9, सबका आप न्यूमरेटर सारे फ्रैक्शन का, सारे रैशनल नंबर का सेम है, 18 है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर रिड्यूस होता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. यहाँ पे 18 था, 9 हुआ, 6 हुआ, लेकिन एज ए डिनोमिनेटर डिक्रीज जितना हो रहा है उसका वैल्यू उतना बढ़ रहा है. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल थी तो आंसर भी 1 था, यहाँ पे थोड़ा हाफ हो गया तो 2 हो गया, राइट. एट द लास्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे कम 2 हुआ तो यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है. एंड हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ लाइन. सो अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाए, कैसे बताया जाए, शो किया जाए, राइट. तो उससे पहले बिफोर दैट यू मस्ट नो टू शो रैशनल नंबर्स ऑन लाइन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पता रहना चाहिए, जो कि आपने यू ऑलरेडी लर्न दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इन आई थिंक 6th स्टैंडर्ड, राइट. न्यू सिलेबस 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दूसरा टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन अब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स दोज फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. अगर वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर बड़ा हो उनके न्यूमरेटर से,
तो वी कैन से दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। लुक एट दिस फ्रैक्शन 4/9, 3/8, 1/7, सबका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है उनके न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर छोटा है, 4 छोटा है, 9 बड़ा है, 3 छोटा है, 8 बड़ा है। So this is called proper fraction. But when the denominator is smaller than numerator, like 4/3, 14/8, 11/7, सारे डिनोमिनेटर छोटे हैं उनके न्यूमरेटर से, तो we can say these are called improper fraction. So improper fraction को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये आपने 6th स्टैंडर्ड में सीख चुका है। तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा रहा है कि शो दिस नंबर्स, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया है कि शो करो नंबर लाइन पर, तो आपको पहले उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा, देन यू कैन शो दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सो अच्छा, 11/4 क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फॉर्म। Now look at this fraction, all fractions. In all fraction 2/3, 4/5, minus 2/3, minus 3/5, denominator of all the fractions are greater than its numerator. सबका डिनोमिनेटर बड़ा है उनके न्यूमरेटर से, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड टू प्लॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, इट्स वेरी इजी। हमको एक नंबर लाइन बनाना है, लाइक दिस नंबर लाइन बनाना है, उसको 0 से 1 के बीच में राइट साइड पे 1 पॉजिटिव 1, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव 1 लिखना है, राइट। तो अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर है 2/3, तो डिनोमिनेटर इज 3, तो डिवाइड द 0 to 1 into 3 parts, 1, 2 and this 3, and numerator is 2, so that's why 2/3 like this. Now next number is 4/5. ये कैसे पता चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस का, अब हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 1.1, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, वहां पे मेंशन नहीं है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, वहां पे कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी, कुछ इम्प्रॉपर रहेगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इफ आई राइट 8/3, इस फ्रैक्शन में 8/3 में 8 इज अ ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम नंबर लाइन पे इसको शो कर सकते हैं। वो इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है, राइट। सो 4/5 डिवाइड 0 to 1, बिकॉज 4/5 पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसलिए हम राइट साइड पे लेंगे, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे निगेटिव, तो 1, 2, 3, 4 and this 5. Numerator is 4, so we can take like this 4/5. शायद दिखा नहीं आपको, वापस बताता हूँ। 4/5 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए हम 5 पार्ट्स में करेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, एंड न्यूमरेटर 4 है, तो 4 पे हम 4/5 इस ऐसे लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट नंबर है -2/3, राइट। तो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, अब ये निगेटिव नंबर है तो निगेटिव साइड पर आएगा, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स आते हैं। 0 से -1 के बीच में 3 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, 1, 2 एंड दिस 3, एंड -2/3, तो दिस इज 1 एंड दिस 2, -2/3, and last one is -3/5, 0 से 1, 1, sorry, 0 से 1, 1, sorry, 0 -3/5, तो 5 पार्ट्स में, 0 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड में, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5, 1, 2, 3, 4, 5, -3 है, 1, 2, 3, तो ये आ गया हमारा -3/5। अब आ जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मेंशन नहीं रहेगा, मैं इसलिए सेपरेटली आपको समझा रहा हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाउ वी कैन डिनोट द
और शो द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। वहां पे एग्जाम क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना रहेगा, शो द रैशनल नंबर्स और फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। सो 4/3 यहाँ पे देखिए सारे फ्रैक्शंस 4/3, 11/4, -8/3, ये लास्ट -9/5, सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर अब बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, राइट। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा। मिक्स नंबर में कैसे करेंगे, आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है। लाइक 4/3 है, मैं आपको 4/3 और 11/4 को यहां करके दिखाता हूं। 4/3 means 4 is divided by 3, 3 ones are 3, 4 minus 1। सो रिमाइंडर यहां पे क्या आया, रिमाइंडर कैसी कंडीशन में लिखना है इसके, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर साइड में कोशेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, कोशेंट इज 1, रिमाइंडर 1 एंड डिवाइजर सेम एज इट इज। सो 3 ones are 3, यू कैन से 3 ones are 3, 3 + 1 4, 4/3, राइट, सेम आ गया 4/3। इसी तरीके से 11/4 डिवाइड दिस 11/4, डिवाइड दिस 11/4। अब 4 के टेबल में तो 11 नहीं आता, 4 2 ज़ा 8, 11 - 8 3। सो कैसे लिखेंगे इसके, रिमाइंडर इज 3, क्वोशंट इज 2 एंड डिवाइजर इज 4। तो 4 2 ज़ा 8, 8 3, 8 + 3 11, 11/4, राइट। ऐसी कंडीशन में तो क्या हमारा क्या आया यहाँ पर, we can write 4/3 as 1/3, right, and 11/4 2 3/4 एंड -8/3। अब डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 के टेबल में 8 आता नहीं, 3 2 ज़ा 6, तो साइड में लिखेंगे 3 2 ज़ा 6 एज इट इज, 3 2 ज़ा 6 8, तो लेकिन माइनस रहेगा, राइट। अब इसी तरीके से 5 1 ज़ा, हमको 9 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड रिमाइंडर 4, ये माइनस है, राइट। तो 5 1 ज़ा 5 और +4 -9/5। नाउ अब ये सारे फ्रैक्शंस को हमको नंबर लाइन पे मिक्स नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अब ये देखिए फर्स्ट वाला 1 के बाद, आप इसको गौर से सुनिए, लिसन केयरफुली। 1 आफ्टर 1 विच नंबर कम, 2 कम, तो बिटवीन 1 and 2, अब यहाँ पे देखिए नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। आफ्टर 1 2 कम, तो बिटवीन 1 and 2 वी विल डिनोट दिस 1 आफ्टर 1 2, तो 1 और 2 के बीच में लेना है। और पार्ट्स कितने करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 करेगी, इसको छोड़ के 1 2 एंड दिस, और न्यूमरेटर क्या है 1, तो हम यहां पे शो करेंगे लाइक डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 1/3 या 4/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, राइट, डायरेक्टली 4/3 भी लिख सकते हैं। अब 2 11/4 को कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, राइट। 2 और 3 के बीच में लेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है, राइट। तो 1 2 3 एंड दिस 4, न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 कहाँ है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लेंगे, तो डायरेक्ट हम 11/4 भी लिख सकते हैं। अगर आप 11/4 डायरेक्ट करके लिखते हो, लेकिन वहां पर आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, लेकिन डायरेक्ट आप ये लिख लिया तो कोई बात नहीं, यू विल गेट फुल मार्क्स, नो वन। नाउ अब ये -2 2/3 ये निगेटिव नंबर है, तो -2 के बाद इधर जाना है, निगेटिव है ना, -2 के बाद उस -2 के बाद वाला नंबर -3 आता है, तो -2 एंड -3 के बीच में हम 3 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है। 1 2 and this 3, right, and numerator is 2 1 2,
तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 8 माइनस 8/3 भी लिख सकते हैं। अब लास्ट वन आ जाता है -9/5। -9/5 हमने क्या किया था, -1 और 5 के बीच में। अब जो लास्ट नंबर है हमारा ये है, ये इस मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर इस फ्रैक्शन का है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो -1 के बाद कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो -1 के बाद कौन सा नंबर आता है, -2 आता है। तो -1 और -2 के बीच में डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 है, तो 5 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस 5, एंड न्यूमरेटर में 4 है तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं -9/5। तो इन दिस वे वी कैन शो द नंबर्स ऑन अ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ 2 और 3 एग्जांपल्स। टोटल 4 एग्जांपल्स दिए हुए, 3/2, 5/2, -3/2, राइट। तो अब देखिए ये ऑल फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, है ना। तो सारे फ्रैक्शंस ये इम्प्रॉपर है। तो पहले इसको मिक्स नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। मिक्स नंबर में डायरेक्टली हम कर लेते हैं 2 1 जा, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 1 एंड रिमेनिंग 1। आप बोलोगे कि ये कैसे आया, इसको डिवाइड करते हैं अगर हम 3/2, राइट। 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 1, है ना। तो रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, डिवाइजर नीचे रहेगा और क्वोशंट को इधर लिखेंगे, राइट। तो ये 1 1/2। अब ये देखिए 1 के बाद 1 1/2, ये मिक्स फॉर्म में लिखा हमने। अब 5/2 को 2 की टेबल में आता है, 5 नहीं आता है। तो देखिए सिंपल टेक्निक बता रहा हूं मैं, सिंपल तरीका, सिंपल मेथड। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिए। अब 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, राइट। तो साइड में लिख दिया क्वोशंट एंड रिमाइंडर 1, क्योंकि 5 - 4 अगर आप डिवाइड करोगे लाइक 5 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर 2 2 जा 4, 5 - 4 1, सो रिमाइंडर आ गया 1, है ना। और डिवाइजर 2 एज इट इज, क्वोशंट 2, तो ये आ गया लाइक दिस। एंड लास्ट वन डायरेक्टली हमसे सॉल्व ना करते हुए, डिवाइजर एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर 1, सो ये माइनस में रहेगा। सो अब हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। 1 1/2 का 1 के बाद देखिए 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2, राइट। तो 1 और 2 के बीच में हम लेंगे, 1 के बाद आता है 2, 1 और 2 के बीच में नंबर लेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 और ये 2 एंड न्यूमरेटर 1 है, तो यहां पर ले लेंगे 1 1/2। डायरेक्टली भी इसे आप 3/2 भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट नंबर है 5/2। 5/2 2 1/2। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, राइट। तो 2 और 3 के बीच में 2 पार्ट्स करना है। ये हो गया 1 और ये 2, 1 2। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/2, 5/2। अब आ जाता है लास्ट वन, -1, निगेटिव नंबर है ये। -1 के बाद वाला नंबर -2, तो -1 और -2 के बीच वाला नंबर -2, तो -1 और -2 के बीच में 2 पार्ट्स करेगी। ये हो गया 1 और ये 2 पार्ट्स। डायरेक्टली ये -3/2 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -3/2, ये ना लिखते हुए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब
प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है 7/5। तो डायरेक्टली हम इसको मिक्स नंबर में कैसे करते हैं डिवाइड करके मैं बता चुका हूँ। तो इसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 5 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? सॉरी, यहाँ पर लिख लेते इसे डिवाइजर एज इट इज, क्वोशंट 1 एंड रिमाइंडर 2, राइट। इन दिस वे वी विल राइट। हमने इसको डिवाइड किया, 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर में एज इट इज 5 लिखना है आपको, राइट। 5 1 जा 5 हो रहा है तो क्वोशंट को साइड में लिखा और रिमाइंडर जो भी बचा है उसको ऊपर लिख दिया, राइट, है ना। इसी तरीके से -2/5 इसको कैसे करेंगे? अब ये -2/5 देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। -4/5 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। सो वी कैन से दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डायरेक्टली हम 0 और 1 के बीच में प्लॉट कर सकते हैं। तो आप लेते हैं इन फ्रैक्शंस को। नाउ अब देखिए 7/5 को कैसे प्लॉट करेंगे। 1 हमने इसको मिक्स नंबर, वी हैव कन्वर्टेड इनटू मिक्स नंबर। आफ्टर 1 2 कम ना, आफ्टर 1 कम 2। तो अब दूसरा नंबर लाइन लेते हैं क्योंकि दूसरा हम तो क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अभी इसको देखिए 0 आफ्टर 1 और 2 के बीच में 5 पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 ये 5 पार्ट्स। और रिमाइंडर यहाँ पे देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 2 था, राइट। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, 1 ये हो गया 1 2, राइट। ये पे डायरेक्टली हम 7/5 लिख सकते हैं। 7/5 लिख लिया। उसके बाद जो था -2/5 है ना, जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व किया था -2/5 डायरेक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डायरेक्टली ये नेगेटिव नंबर आए तो 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में हमको लेना है कितने पार्ट्स? 5 पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। 1 2 3 4 यानी 5, यानी 1 2 ये हो गया -2/5। एंड लास्ट फ्रैक्शंस -4/5 था। तो कैसे लेंगे? वो भी 0 और 5 के बीच में। ऑलरेडी 5 पार्ट्स हमने कर लिया है। एंड 1 2 3 4 इट विल बी कम हियर -4/5। इन दिस वे वी कैन प्लॉट। अब नाउ लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल। ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, -5/8 एंड 11/8। ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इनका नहीं सॉरी ये जो है ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। तो इसको डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है 8 है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हम मिक्स नंबर में कैसे करेंगे? 8 1 जा 8, डिनोमिनेटर में एज इट इज 8 लेंगे, 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर 3, राइट। तो डायरेक्टली पहले हम इसको वो तो आप प्रॉपर ला आसान है। तो 1 के बाद आप देखिए 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 1 और 2 के बीच में हम ये नंबर प्लॉट करेंगे। कितने पार्ट्स करना रहेगा? 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है। अच्छा, 1 के बाद जो नंबर आता है वही वाला वो नंबर के बीच में हमको प्लॉट करना रहता है ना मिक्स नंबर में, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिर्फ 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो 1 और 2 के बीच में 8 पार्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 पार्ट्स किया और न्यूमरेटर में 3 था, 1 2 3। तो यहाँ पे हम ले लिया, या तो डायरेक्टली 11/8 भी ले सकते थे, राइट। अब आ जाता है लास्ट वन -5/8। तो ये 0 और -1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ये 0 और -1 के बीच में 8 पार्ट्स करेंगे। 0 और -1 के बीच में 8 पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और -5 था तो 1
1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जाएगा ये -5 अपॉन 8, राइट। इन दिस वे वी कैन प्लॉट। देखिए अब ये लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है ना, 13 अपॉन 10 एंड -17 अपॉन 10, दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इनका दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है। सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर। मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स नंबर में कैसे करेंगे इसे 10 1 जा 10 एंड रिमाइंडर 3, राइट। इस तरीके से इसका कितना आएगा 10 1 जा 10, रिमाइंडर 7, 10 1 जा 10, 17 अपॉन 10, राइट। तो ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। तो अब 1 और 2 क्या 1 के बनाए, 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 यहाँ पर बढ़ाएंगे, राइट। तो 3 पार्ट्स 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 आया डायरेक्टली 13 अपॉन 10 और -17 अपॉन 10। अब ये निगेटिव नंबर है, राइट। तो निगेटिव 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो -1 और -2 के बीच में हमको 10 पार्ट्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाला पार्ट हो गया। अब 7 भी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डायरेक्टली हम 17 अपॉन 10 लिख सकते हैं। सो इन दिस वे I have solved these all 4 questions of the practice set 1.1. So this is a second question. The number line is already given. We need to observe this number line and answer the following questions. So सबसे पहला question है which number is indicated by point B. Before that we already learn पिछले क्वेश्चन में और how to plot a numbers on number line, उसके जरिए हमने सीखा। Now हर एक दो नंबर के बीच में आप देखिए 0 to 1 या 0 to -1 कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे काउंट लीजिए 1 2 3 4। सो हर एक दो नंबर के बीच में 4 पार्ट्स है, राइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो पॉइंट बी इज 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 4 रहेगा, राइट। अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा ऊपर, देखिए ऊपर 1 2, ऊपर है 2 और ये -2 है, राइट। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें लाइक 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो क्या आ गया यहां पर आना चाहिए था -2 1 अपॉन 2, और इसको इम्प्रॉपर करें तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो 5 अपॉन 2, राइट। या तो नंबर 2 क्या इंडिकेट कर रहा है 5 - 5 अपॉन 2, राइट, या 2 - 2 हाफ या ढाई बोल सकते हैं इसको। अब ई पॉइंट देखिए, ई का नंबर पूछा नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं 1 2 3 4, डिनोमिनेटर में तो 4 रहेगा, राइट, 4 एंड न्यूमरेटर में 2 एंड दिस -1, 2 1 जा 1 2 2 जा 4, सो क्या आ गया -1 1 अपॉन 2, 2 2 जा 1 1 प्लस 2 2 जा 1 2 1 जा 2 + 1, या डायरेक्टली हम 3 अपॉन 2 भी ले सकते हैं, -3 अपॉन 2 ई को। नाउ if already given 1, अब C which points indicate the number 1 3 upon 4, right। अब 3 upon 4 देखिए 4 1 जा 1 it is a positive 1 3 up 3 and 4 1 3 4, तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो 1, अब 1 और 1 के बाद क्या नंबर आता है हमने सीखा 1 के बाद 2, तो 1 और 2 के बीच में आना है इसको। अब 4 पार्ट तो ऑलरेडी है 1 2 3 4 एंड 3 पर है, तो 1 2 3 न्यूमरेटर में 3 है, तो दिस इज 1 3 अपॉन 4, राइट। सो इसका आंसर क्या आ गया हमारा -5 अपॉन 2 और
दिस इज C एंड पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2. अब पॉइंट D देखिए किधर है, पॉइंट D इज इन ऑन द 1 2 3 4. सो इफ वी सॉल्व लाइक दिस 4, अब न्यूमरेटर D किधर है, 1 2 2 और ये नंबर 2 है, राइट, दिस इज 2. तो 2 1 2 2 2 4. सो 2 1/2. अब 2 1/2 मतलब 2 2 4 प्लस 1 5/2. So we can say 5/2. So this is right. It is true. This is true. This statement is true. So in this way, सबसे पहले हमको प्लॉट करना है कि बिटवीन टू नंबर पार्ट्स गिनना है, काउंट करना है, उसके हिसाब से हम वट एवर द क्वेश्चन आस्क, एनी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हम आंसर दे सकते हैं. Students, if you like this video and if you understand the concept, please like our video and share our video. Thank you for watching this video.